हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डायोड के रेजिस्टेंस। तो डायोड के जो रेजिस्टेंस हैं वो कितनी टाइप के होते हैं पहले वो देखते हैं। डायोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से समरी समझा देता हूं कि डायोड का रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं ना। जो डायोड हैं उनके दो तरीके के इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस that is known as RF or some books capital RF. ठीक है, done. Then the second one is called reverse bias or backward bias. Reverse bias resistance that is called R, that is, or it is small r of R, that depends upon the writer. ठीक है, so we have two types of resistance of diode, the forward bias and the reverse bias resistance. Now the forward bias resistance is of two type. The first is called static or DC resistance. ठीक है, then the second one is called dynamic or AC resistance. ठीक है, याद है। Now the formula of RDC is what? VD upon ID. Clear? अभी मैं इसको explain भी करता हूँ, then I will also explain the AC or the dynamic resistance. ठीक है, then the formula of RD, the R dynamic is equals to NVT upon I of F, the diode current. ठीक है, आता है। So we have forward bias and the reverse bias resistance of diode, and in case of ideal diode, for ideal diode RF is 0 ohm. That is behaves as conductor or short circuited. ठीक है, आता है। But for the practical diode, this forward bias resistance is from 10 to 100 ohm range. ठीक है, आता है। Similarly, for the reverse bias condition, for ideal diode, this R of R is infinite. And it behaves as insulator. Now for the practical diode, R of R should be greater than 1 mega ohm. ठीक है, यहाँ तक। सो ये इनकी वैल्यूज हो गई। नाउ जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक और द डायनामिक रेजिस्टेंस और डीसी और एसी रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टैटिक और द डीसी रेजिस्टेंस। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। द डेफिनेशन क्या है इसकी देखते हैं। इट इज डिफाइंड as the ratio of voltage across the diode, to its current. ठीक है, ना क्या मीनिंग है उसका देखिएगा। पहले मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं द स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। नाउ सपोज ये रहा आपका कोई डायोड, this is your diode, this supply voltage, then it is VD and it is ID, then RDC equals to VD upon IFD. ठीक है, आता है। now it depends upon it, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, it depends upon where the diode operates. ठीक है, that means अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बनाता हूँ, डायोड की करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक को बनाता हूँ, then this ratio is called VD and corresponding to this current
the corresponding to this current is the diode current or the forward bias current. So the ratio of this voltage to this current is called the diode DC resistance. So that means your DC resistance or the static resistance depend upon the operating condition or the biasing point. ठीक है. In general, in some books it is also called, suppose it is VQ and it is called IQ, then RDC is also called VQ upon IQ. The points corresponding to the operating point or the bias point. तो ये रहा आपका DC और स्टैटिक रेजिस्टेंस. क्लियर है यहाँ तक. अब मैं समझाता हूँ कि जो AC रेजिस्टेंस है या जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलता है. तो स्टार्ट करते हैं AC और डायनेमिक रेजिस्टेंस. पहले मैं आपको ग्राफ को समझा दूं. हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा DC वोल्टेज है, DC वोल्टेज पर एक AC वोल्टेज, स्मॉल मैग्नीट्यूड का AC वोल्टेज दैट इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप इज सुपर इम्पोज. तो क्या हम अजम्पशन लेते हैं यहाँ पर, here we assume that a small magnitude AC voltage is superimposed on DC. But AC की जो वेव फॉर्म है दैट इज ऑफ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म. ठीक है यहाँ तक ना. अब जरा समझिएगा, सिंस अगर मैं इसमें KVL लगाता हूं तब क्या होगा, KVL द टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट इज V of D of t that is equals to what, VD of t plus VD. The equation number 1. Now when the AC voltage is 0, the only voltage, when this AC voltage 0, the only voltage exists that is called DC voltage. Then VD gives you the I naught, VD gives you the ID that is equals to I naught e की पावर VD upon NVT. ठीक है यहाँ तक, it is NVT. क्लियर है यहाँ तक, बात समझ जाएगा. नाउ the current corresponding to this voltage, this instantaneous voltage is I naught e की पावर VDT upon NVT. Equation number 2. Now put equation first in equation second. हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. ठीक है यहाँ तक. सो ID of t दैट इज इक्वल्स टू I naught e की पावर VD की वैल्यू क्या है, इट इज V of D of t प्लस कैपिटल VD अपॉन NVT. ठीक है यहाँ तक ना. इसको एक्सपेंड करते हैं, I naught e की पावर VD अपॉन NVT इंटू e की पावर VD t अपॉन NVT. ठीक है ना. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज कैपिटल ID. ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से. इट इज I of D. बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक. सो इट इज ID. नाउ इट इज e की पावर VD of t upon NVT. Now we are taking the small portion of AC voltage. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है. तब क्या होगा, then VD of t upon NVT is very less than 1. Then this exponent becomes 1 plus VDT of NVT. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है यहाँ तक ना, बात समझ में आ गई है. अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं जिससे कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं. ठीक है. सो इस डायग्राम को हम हटा दें, जो कि डायग्राम ये बता रहा है कि वी हैव सुपर इम्पोज्ड ए ट्रायंगुलर वेव AC वोल्टेज ऑन DC. ठीक है यहाँ तक. सो डायग्राम को अब हटा दिया है मैंने, देखिएगा. अब इस डेरिवेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जिससे कि डेरिवेशन यहीं समाप्त हो जाए हमारा. नाउ इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूं. देन दिस टर्म, दिस ID of t that is equals to I of capital D plus ID into
it is what ID into VD of t. I think it is correct. It is okay, it is just correct. ID into let me just check it. So इस एक्सप्रेशन को मैं यहां समझाता हूं कि ID द टोटल इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल्स टू दिस, देन दिस I of D of t equals to I of capital D plus ID of t into V of D into t upon n VT. यहां तक मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. नाउ the total instantaneous voltage is equals to what? The AC voltage plus the DC voltage. Similarly, this I of D, the total instantaneous current equals to the DC current plus the AC current plus the AC current. I of D of T. ठीक है यहाँ तक. अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ मुझे AC resistance निकालना है, then we have to take this expression. Then I of D of T is equals to ID, capital ID into VD of t upon NVT. Now, अगर मैं करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो लेता हूं ID of t upon VD of t, then it is what? ID upon NVT, that is called the conductance, the AC conductance. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. Now, अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस चाहिए, देन आई जस्ट टेक द रेशियो ऑफ VD अपॉन ID और जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द व्हाट, द कंडक्टेंस. देन द डायनेमिक रेजिस्टेंस इज व्हाट? NVT अपॉन I of D. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड योर डायनेमिक कंडक्टेंस. इट इज इंपॉर्टेंट. Now, अगर यहां से हम देखें जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनेमिक जो रेजिस्टेंस है RD, दैट डिपेंड्स अपॉन द VT और टेम्परेचर, एंड RD इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायोड करंट, ऑल्सो कॉल्ड द फॉरवर्ड बायस करंट. ठीक है यहाँ तक. एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन द RD ऑफ जर्मेनियम. ठीक है यहाँ तक. अब इसका मैं मतलब समझाता हूं. जब हम एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का AC वोल्टेज जो है DC पर सुपर इम्पोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. व्हेन वी आर अप्लाइंग ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज और वी आर सुपर इम्पोजिंग ए स्मॉल मैग्नीट्यूड AC वोल्टेज ऑन योर DC, देन अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट और बायस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दैट इज टेंजेंट एट Q. क्लियर है? देन उस टेंजेंट के दोनों साइड दिस करंट शुड अकर इन लीनियर पोर्शन, देन दैट करंट शुड अकर इन ए वेरी स्मॉल लीनियर पोर्शन. क्लियर है? यानी कि जो AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही है, दैट शुड बी एम्पलीफाई और अकर इन द लीनियर पोर्शन ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात. अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, इट इज डिफाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डायोड कैरेक्टरिस्टिक और डायोड कर्व. ठीक है यहाँ तक. सो अगर मैं डेफिनेशन देता हूं तो डेफिनेशन क्या होगी यहां पर? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल of diode IB curve. So diode IB curve slope. So RD is 1 by slope. Whose value is what? Whose value is NVT into ID. Now एक क्वेश्चन और रहेगा यहाँ पर. If N is 1, if that is zeta is 1 for the silicon and VT is 1, VT is 26 millivolt and the diode current is 26 milliampere. Now if a diode is having 26 milliampere forward current at 26 millivolt, then the diode dynamic resistance
is 1 into 26 की पावर -3 upon 26 की पावर -3, 26 into 10 की पावर -3, so it is just cancel out, then the RD is 1 ohm. Clear है यहाँ तक? So this is all about what your AC resistance. So AC resistance क्या है? जब हम किसी डायोड पर एक स्मॉल सिग्नल का AC वोल्टेज जो है सुपर इम्पोज करते हैं, then the corresponding resistance given by that diode is known as your the dynamic resistance. ठीक है यहाँ तक? Whose value is what? NVT upon ID. And at 26 milliampere its value is 1 ohm and its formula आपको याद रखना है. और ये जो आप AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं डायोड पर, it should occur in the very linear portion of the Q point or the tangent at the Q point. ठीक है यहाँ तक? अब एक दो न्यूमेरिकल जो रह गए हैं वो देख लेते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड आए हुए हैं या कुछ और भी आए हुए हैं वो कवर कर लेते हैं. सो न्यूमेरिकल देखते हैं. पहला न्यूमेरिकल है, ए डायोड हुज टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक आर रिलेटेड एज ID इक्वल्स टू ISV अपॉन VT, where IS is the reverse saturation current and VT is the thermal voltage whose value is 25 millivolt, is biased at ID equals to 2 milliampere. Its dynamic resistance is, पहला ऑप्शन है 25 ओम, फिर 12.5, 50 and 100 ओम. नाउ अगर आपको याद हो, द डायनेमिक रेजिस्टेंस RD is NVT अपॉन ID, that is also equals to IF. यही तो था. So अगर zeta की वैल्यू नहीं दे रखी है, it is different for different material, so you just assume 1, so it is 1 into VT is 25 millivolt. Then how much is your the ID is 2 milliampere, 2 into 10 की पावर -3, so it is just ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट. then 25 का जो हाफ है that is 12.5 ओम. ठीक है यहाँ तक? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डायनेमिक रेजिस्टेंस ए जर्मेनियम डायोड हैव एट ए रूम टेम्परेचर फॉर ए फॉरवर्ड बायस करंट ऑफ 26 मिली एम्पियर. पहला ऑप्शन है 0.1 ओम, फिर 1 ओम, और फिर है 10 ओम, और फिर है 1000 ओम. अगर इसका आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो इसको आपको जो आंसर देना होगा, बी देना होगा. वो कैसे देना होगा वो और समझिएगा. नाउ RD का जो फॉर्मूला था अभी लिखाया है हमने, RD इज N eta BT अपॉन ID, यही तो था. Now it is 1 and how much your thermal voltage? It is 26 millivolt. Then how much is the diode forward bias current? It is given as 26 milliampere. Then it is cancel out, so 26 divided by 26, that is 1 ohm. So इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो भी होगा, और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर जो करेक्ट होगा वो भी करेक्ट होगा. ठीक है. नाउ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड डायनेमिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. पहला ऑप्शन है अप्लाइड वोल्टेज, नेक्स्ट है द टेम्परेचर, सी ऑप्शन है इट्स करंट, एंड लास्ट ऑप्शन है द थर्मल वोल्टेज. नाउ अगर आपको याद हो फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ व्हाट द एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस, RD is zeta VT upon ID. Then the conductance, the dynamic conductance is 1 by RD. So it is NVT into of ID. ठीक. अब हमसे पूछा है is proportional to what? Its current and inversely proportional to the temperature and thermal voltage. ठीक है यहाँ से. तो अगर आपको RD के बारे में देखना है, and it is proportional to temperature, proportional to VT and inversely proportional to IF or the diode current. Similarly, the GM is directly proportional to ID or IF and inversely proportional to temperature and VT. ठीक है. बट यहाँ पे हमसे पूछा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ GM because it is related to the conductance. So conductance के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है that is what? Current. So आंसर जो सही होगा वो होगा C, correct. Now next question, which one of the following statement is correct under the small signal operation of diode? Now first option है its bulk resistance increases, next है its junction resistance predominates, next है it acts like a switch, and D option है it behaves as a clipper. So under the small signal operation, the junction predominates as the resistance. Simple है. Under the small signal operation of diode,
इट बिहेव्स एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं आगे।